So anfangen mit, beginnen mit, जिस treffen mit, ये आपको साथ में लर्न करनी है. स्टोरी में तो आ ही रहा हूं, डोंट वरी. Beginnen mit, anfangen mit, जिस treffen mit. अगर इसके साथ में ये है तो इसका मतलब ये है, normally you will say mit with beginnen as a rule, you can say, मतलब almost always you will see, but it is not a must. ऐसा नहीं है कि beginnen आ गई तो mit आएगी और नहीं आएगी तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ऐसा नहीं है. बट अगर कोई प्रीपोजिशन आएगी beginnen के, this is the rule. We are starting with the story. We are beginnen mit der Geschichte. We are starting with the A2 course. We are beginnen mit dem A2 Kurs. अब की बार dem क्यों हुआ? क्योंकि der कोर्स है. तो we are beginnen mit dem Kurs. mit तो डाटिव है. anfangen mit तो क्या इसमें भी डाटिव है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि mit डाटिव है. mit डाटिव है. प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो wir haben mit dem Kurs begonnen. beginnen का पेशवाई begonnen. Wir haben mit dem Spiel begonnen. We have started the game. We have started the game. मतलब wir haben mit dem Spiel begonnen. Wir haben mit dem Kurs begonnen. फ्यूचर में wir werden mit dem Kurs beginnen. mit तो आना ही है. mit dem Kurs, mit dem Spiel, mit dem क्या राउखन. नो राउखन तो मतलब स्मोकिंग है. तो मतलब स्मोकिंग स्टार्ट कर दिए उसने. तुम्हारा बच्चा बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है. एयर हार्ट, मतलब ये तो सरकास्टिक हो गया ना. mit dem Rauchen begonnen, mit dem Lernen begonnen. ये जो भी वर्ब है, वर्ब नाउन बन जाती है. ये चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है ना थोड़ी सी. ऑल द वर्ब्स जिरंड वाला मामला हो जाता है इसमें. जैसे मान लो कोई बोले राउखन का मतलब है टू स्मोक, लेकिन दास राउखन का मतलब है स्मोकिंग. कोखन इज टू कुक, लेकिन दास कोखन का मतलब है कुकिंग. लर्नन का है टू लर्न, बट दास लर्नन का मतलब है लर्निंग. हर एक वर्ब के को कैपिटल लिख दो तो वो नाउन बन जाती है. ये तो ठीक है. ओके, तो जिस treffen mit, beginnen mit, anfangen mit. anfangen से आपसे को सेंटेंस, anfangen भी mit लेती है, ये तो आपको पता चल गया. मैं आपसे सेंटेंस बनाऊंगा. We have started A2 course. anfangen से बना दो. अभी Wir fangen mit A2 Kurs an. शाबाश. अभी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ. Wir haben mit dem Wir Kurs haben mit A2 Kurs angefangen. mit angefangen. That's right. Okay. Wir haben mit dem A2 Kurs angefangen. Anfangen का angefangen. Warten का Gewartet. warten के साथ auf आता है. Wir warten auf dich. We are waiting for the bus. क्या होगा? Wir warten Auf den Bus. Wir warten Den Bus. Wir warten auf den Bus. Okay, wir warten auf den Bus. मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रहा हूँ. I am waiting for your father. क्या होगा? Warte auf deinen Wir Vater. warten auf deinen Vater. Ich warte auf Ich warte. Deinen deinen Vater. Vater. Ich warte auf den deinen Vater. Are you waiting for me? Warten Sie auf Hast du, Du wartest hast du, hast du, Wartest du auf Wartest du auf mich? mich? mich, auf mich. mich. जैसे मान लो आपने वार्टन के साथ auf लर्न कर लिया,
तो ऐसे लर्न करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको यूज नहीं कर सको। अब उसको यूज करने का मतलब है इन प्रेजेंट, इन पास्ट, इन परफेक्ट, इन फ्यूचर विद मॉडल वर्ब, वो तो हर कहीं दिखना चाहिए आपको। सो ही हैज नॉट वेटेड फॉर मी, उसने मेरा वेट नहीं किया। ही हैज नॉट वेटेड फॉर मी। Er Er hat nicht Auf hat nicht auf mich gewartet. gewartet. Er hat auf mich nicht gewartet. Er hat auf mich nicht gewartet. Okay. Why are you waiting for him? तुम उसका वेट क्यों करते हो? Why are you waiting for him? Warum warten Sie auf dich? Warum wartest du Auf dies? hier? Warum wartest du auf ihn? Auf ihn. He never waits for us. वो कभी भी वेट नहीं करता हमारा। Here, Er- wartet to Er Er wartet nicht nie. wartet Er wartet auf Er Nie auf- wartet nie auf Nie uns. auf uns. uns. Auf uns. auf uns. क्या हम उसका वेट नहीं करेंगे? Will we not wait for him? warten wir Warten nicht wir nicht auf dies Werden warten. auf werden Werden wir wir warten nicht auf dies auf ihn nicht warten. werden wir warten auf uns. Ihn warten. werden wir auf ihn nicht warten? ये जो मैं यूज कर रहा हूं निष्ठ की पोजीशन और अलग अलग सेंटेंस यूज कर रहे हैं हम लोग। सो पहली बात तो निष्ठ नॉर्मली वर्ब के बाद में लगाते हैं हम लोग। वर्ब प्लस निष्ठ, डेफिनेट नाउन प्लस निष्ठ। अगर इन्फिनिटिव वर्ब आ रही है तो उससे पहले लगाते हैं हम लोग। ये दो केस में जनरली दिखती है, या तो फ्यूचर में या मॉडल वर्ब में। सेकंड पोजीशन पे वेर्डन या मॉडल वर्ब आ जाती है, एंड लास्ट में इन्फिनिटिव आए तो उससे जस्ट पहले निष्ठ लगा देते हैं हम लोग। इसके अलावा प्रीपोजिशन के केस में अक्सर प्रीपोजिशन से पहले, अक्सर पेज स्वाइल के केस में अक्सर पेज स्वाइल से पहले निष्ठ लगा देते हैं नॉर्मली, ये जो ढाई। क्लियर? ओके। सो व्हाई यू डोंट वांट टू वेट फॉर हिम? तुम उसका वेट क्यों नहीं करना चाहते? व्हाई यू डोंट वांट टू वेट फॉर हिम? Warum wolltest du auf ihn nicht warten? शाबाश, noch einmal, repeat. Warum wartest du auf ihn nicht warten? तुम उसका वेट क्यों नहीं करना चाहते? Why don't you want to wait for him? तो want है इसमें। Warum wartest du nicht Warum auf Warum Warum willst du willst du auf auf ihn nicht ihn warten? nicht warten? Warum willst du auf ihn nicht warten? Ja? Why don't you like him? तुम उसको पसंद क्यों नहीं करते? Why don't you like him? Warum Warum magst nicht du du warum used du nicht ihn? hier? Warum magst du nicht ihn? Warum magst du ihn nicht? Warum magst du ihn nicht? Okay, good. ठीक है। अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस ही बना रहे हैं, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेट बदलता है तो हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सेंटेंस नहीं बनाए। आपको डेली 150 सेंटेंस, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। आप जर्मन से करियर बनाना चाहते हो, जर्मन लैंग्वेज से करियर बनाना चाहते हो, तो रोज के ही 150 सेंटेंस बनाने हैं। मतलब रोजाना 150 सेंटेंस बनाना बड़ी बात है क्या? नहीं सर। हमने 10 तो बनाने नहीं, सर। होंगे।
Yes, 10 sir. सेंटेंस तो बना लिए होंगे हमने, तो आप पूरे दिन में 150 सेंटेंस नहीं बनाओगे तो क्या ही जर्मन सीख रहे हो फिर। डोंट वेस्ट योर टाइम। सो अगर आप रोज ही 150 सेंटेंस बना रहे हो तो आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, मींस यू आर हैबिचुअल। हैबिचुअल होने के लिए एक वर्ब होती है जिश गिव्योनन अन, जिश गिव्योनन अन, जिश गिव्योनन अन। अगर मैंने बोल दिया जिश गिव्योनन अन तो आपको पता चल गया ये किस टाइप की वर्ब है, तो सेपरेबल है सेपरेबल है सर। नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव है। जिश आया सर, रिफ्लेक्सिव है, reflexive verb है, सर। सेपरेबल नहीं है। Reflexive है। जिश गिव्योनन अन, जिश गिव्योनन प्लस अन आकुजाटिव। अन तो प्रीपोजिशन है ना सर इसमें। अन तो प्रीपोजिशन है, ये अन गिव्योनन नहीं है वर्ब, अन तो प्रीपोजिशन है। जिश गिव्योनन सर ये सर अन गिवन के साथ फिक्स है क्या? जैसे गिव्योनन, मीट फिक्स जिश है। गिव्योनन के साथ अन फिक्स है, जैसे वार्टन के साथ आउट फिक्स Yes. है। इसका मतलब है टू बी हैबिचुअल, किसी चीज की आदत पड़ना। इस गिव्योन मिश अन दस unterrichten, मुझे पढ़ाने की आदत पड़ गई है। नहीं पढ़ाने से बेचैनी होती है, इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान बहुत ज्यादा भर गया है मेरे में ना, लेकिन आदत हो जाती है किसी चीज की। इस गिव्योने मिश अन दस लेरन, जी गिव्योनन जिश अन दस लर्नन, आपकी पढ़ने की आदत हो गई है। इस गिव्योने मिश अन डॉइच लर्नन, एक साथ नाउन के तौर पे भी बना देते हैं। एर हाट जिश अन दस वेटर गिव्योन्ट, हाट गिव्योन्ट बोला है मैंने, एर हाट जिश अन दस वेटर गिव्योन्ट, मतलब उसको इस वेदर की आदत पड़ गई है। एर हाट जिश अन दस वेटर गिव्योन्ट, वेदर की आदत कैसे पड़ गई है? एक मेरा स्टूडेंट है जो जर्मनी गया है, बोलता है सर मेरे को तो इस वेदर की आदत पड़ गई है। मैंने कहा तेरे को तो 21 दिन भी नहीं हुए, आदत पड़ गई है तेरे को। बोला अब मैंने कहा तेरे तो यहाँ पे उसके जुकाम लगती रहती थी। मैंने कहा तेरा तो अब चालू ही रहता होगा। बोला नहीं नहीं सर आदत पड़ गई है। मैंने कहा तेरे तो 0 में ही चालू हो जाता था, माइनस में नहीं हो रहा। बोला अभी यहाँ पे माइनस का ज्यादा हिसाब किताब बना भी नहीं है इतना, और मेरी वैसे आदत पड़ गई है। वो बोल रहा है इश habe mich an das Wetter gewöhnt, गिव्योनन का गिव्योन्ट हुआ है ये, गिव्योनन गिव्योन्ट। SY सर Ich गिवन। habe mich an das Wetter, ये गिव्योनन अन के बाद में आकुजाटिव ले रहा है। Er hat sich an das Wetter gewöhnt, मेरी दूध पीने की आदत पड़ गई है, बचपन से दूध पीता हूं। अब मैं अगर रात को दूध नहीं पीऊं तो मुझे लगता है कि खाना ढंग से मिला नहीं, अच्छा खाना नहीं मिला, ऐसे आता है दिमाग में, आदत पड़ गई है ना। Ich habe mich an die Milch gewöhnt, क्या तुम भी पीते हो क्या? Er hat sich, दूध पीते हो? हाँ, Er hat sich an die Milch gewöhnt, कोई भी चीज की आदत पड़ जाती है। जिस gewöhnen an, तुम्हारी अभी आदत नहीं पड़ी है होमवर्क करने की। Du hast dich nicht an die Haus of Gabe gewöhnt, जिस gewöhnen an, तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, तुम्हारी इस मौसम की आदत पड़ जाएगी। कैसे बोलेंगे? पड़ जाएगी मतलब अभी पड़ी नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कैसे बनेगा? दो विर du wirst, दो विर्स्ट विस्ट On the du wirst, On das Wetter दो gewonnen. दो du दो wirst विस्ट अन दास वेटर गिवन 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 Gewöhnen तो एज इट इज आएगा ना फ्यूचर में। Du wirst dich an das Wetter gewöhnen, रेट मत आया करो, आदत पड़ जाएगी। Bitte kommen Sie nicht spät, Sie werden sich daran gewöhnen. Okay, good.
सो जिश गिवियोनन अन का मतलब है किसी चीज की आदत पड़ना। यस प्लीज। Daran means sir. मतलब अन दस वेटर, Okay. अन के बाद में आपको नाउन बना देना है, बस इतना ही। ओके ये मैं आपको फिक्स कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं जो कि बार बार आएंगे। आपको कोई वर्ब हाथ लगे तो उसको देख के मुस्कुरा के छोड़ना नहीं है, उसको काम में लेके छोड़ना है। अलग अलग तरीके के सेंटेंस मुडाल के साथ बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनाया, फ्यूचर के साथ बनाया और पास्ट में बनाया, ऐसे मुडाल के साथ अलग अलग तरह से बना के देखोगे तब समझो कि आपको आ गई है। देखते ही आता नहीं है। जैसे गिवियोनन अन आया नहीं है आपको, आपने तो बस तोते की तरह भी रिपीट किया है, लेकिन जब अकेले आप सेंटेंस बना पाते हो इट मींस इट इज डन। ओके सो आपने इसमें 7 चैप्टर्स फिनिश किए। एक बार फटाफट मैं कुछ वर्ड्स पूछूंगा, पता चल जाए मुझे। क्लास, कौन सा करेक्टर आपको सबसे मस्त लग रहा है? क्लास लग रहा है। ओके गुड। क्लास, अंजन, और हेनरिक डिरखाइडर, नीले यूडर्स, नीले भी कम नहीं है, बिर्गिट ब्रांड, ओले विल्कन, ये तो विलेन है, खतरनाक आदमी है। ओके एक्स फ्रेंड फॉर नीले यूडर्स। गन्सन, गन्सन मतलब होल, होल डे, जैसे कोई बोले होल नाइट, होल डे। हाफन, What? पोर्ट, बंदरगाह, Yes. हाफन। प्लाट्स फ्यूर शिप है, शिप्स के लिए प्लेस, यहाँ पे शिप आके रुकती है। टूफ है, स्टेप, लेवल। ग्लाइस है, दस ग्लाइस है, द सेम। एरिश ट्राउरिश, ही इज सैड, Said. उदास है। एरिश ट्राउरिश। हाउ टू से इन पास्ट ही वाज सैड? Var traurig. एरवार ट्राउरिश। ओके he has been said, प्रेजेंट परफेक्ट में। एर इस ट्राउरिस गिवेजन, जाइन का पेशवाई गिवेजन होता है, जाइन वारन गिवेजन, एर इस ट्राउरिस गिवेजन। आई एम इन जयपुर, इसको पास्ट में बनाऊं तो Ishwar in Ishwar. Ishwar in इश्वार इन जयपुर। Ishwar in आई हैव Jaipur. बीन इन जयपुर, It's been in I Jaipur. have Given. It's been in Jaipur. Given. इस बिन Ish have in Jaipur. अब Givetion. नहीं आएगा। Gives. जाइन वर्ब Okay, आएगी sorry. प्रेजेंट परफेक्ट में। Jain. Ish bin. इस बिन इन जयपुर गिवेजन। ओके तुम्हारे बाल काले हैं, हाउ टू से योर हेयर आर ब्लैक? Deine Haare sind Deine Haare sind Seine Haare sind schwarz. schwarz. व्हाट इज वाइस? No. वाइस का मतलब No. यहाँ पे नो। वाइस का व्हाइट भी होता है, वाइस का मतलब व्हाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे है। ओके विसन का वाइस भी होता है और ये वाइस व्हाइट है। नहीं ये वाइस तो टू नो है, और व्हाइट भी सेम होता है, लेकिन वो फिर उससे पहले कोई वर्ब आनी चाहिए। Er weiß noch nicht, dass dieser Tag ganz anders wird मतलब Werden to become. वेर्डन का पास्ट में नहीं प्रेजेंट में ही विड, लेकिन ये फ्यूचर का एक्सप्रेशन दे रहा है यहाँ पे। वेर्डन का मतलब टू बिकम होता है ना, वेर्डन वुर्डन गिवॉर्डन, वेर्डन वुर्डन गिवॉर्डन, बिकम became become। यहाँ पे because of thus verb is coming at the end। ये जो thus है ये कनेक्टर है, इसका मतलब है that। ये बाकी कनेक्टर्स की तरह कनेक्टर है that, और ये कनेक्टर। चलो इस कनेक्टर को भी सीख लेते हैं।
ये जो कनेक्टर है ये जनरली कोई स्टेटमेंट बोलता है, इसके आगे जनरली एक स्टेटमेंट आता है, और इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आता है वाइस, मतलब वर्ब विशन। इससे पहले वर्ब आती है डिंकन, इससे पहले वर्ब आती है ग्लाउबन, इससे पहले वर्ब आती है माइंडन, जागन। मतलब कोई कुछ कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम चोर हो, कुछ तो कह रहा है। He is saying that you are a nice person. He is saying that he is not coming. He is saying that he wants to learn German. कुछ ना कुछ कहता है बंदा, तो कहने के लिए, सोचने के लिए वर्ब यूज करते हैं जनरली। तो आप इसमें नेगेट भी कर सकते हैं, इस जागनिस्ट। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इस जागनिस्ट das nicht kommt. Ich glaube, dass nicht kommt. मैं कह थोड़ी रहा हूं कि वो नहीं आएगा, मैं सोच रहा हूं कि वो आएगा नहीं। I am thinking that. Ich meine, ich glaube, ich denke, ich weiß, I know that you are not coming. मुझे पता है तुम आओगे नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन जानता हूं ना मैं तुमको। Ich weiß, dass du nicht kommst. So, Vision, Denken, Glauben, Jagen, Meinen. Gesundheit. मुझे लगता है कि तुमको जुकाम लग गई है। Ich denke, dass du dich erkältet hast. अब इसने कहा नहीं मेरे को, लेकिन इसे छींक ली, तो मुझे लगता है कि शायद लग गई है। इस टाइम में लगती है लोगों को। तुम क्या सोचते हो? Du denkst auch, dass sich erkältet hat. देखो सेंटेंस सिंपल सा है। मैं भी सोचता हूं कि उसको जुकाम लग गई है। कैसे बोलेंगे? Ich denke auch, dass hat erkältet. sich erkältet hat. Sich erkältet hat. ये सेंटेंस क्योंकि जिस अर्केल्टन वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव है। जिस अर्केल्टन, मैंने आपको ये वर्ब उस लिस्ट में लिखवाई है जिसमें मस्ट रिफ्लेक्सिव था। याद करो, इसका मतलब है कि ये वर्ब बिना जिसके नहीं बनेगी। Ich erkälte mich, ich werde mich erkälten, ich habe mich erkältet। और ये अर फर सर गे एंड एम मिश वाले केसेस में अलग से गे नहीं लगता। तो अर्केल्टन का पेशवाई अर्केल्टेड, गे अर्केल्टेड नहीं होगा, नहीं होता ना, अर फर सर मर नहीं होता। तो ich denke, dass sich erkältet hat. ओके, ये सेंटेंस बनवाते हैं सेम। सोमबीर, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। I think that he has got cough. Ich denke auch, dass sich erkältet। सर एक बार सेंटेंस दोबारा इंग्लिश में रिपीट करना। रिपीट कर नहीं करेंगे इसको, असाद बोलेंगे सेंटेंस को। असाद आप बोलो। मुझे लगता है कि उसको जुकाम लग गई है। इसे denke, इसे ओ सॉरी, इसे denke, dass sich erkältet hat. शाबाश, sehr gut। राहुल, रिपीट द सेंटेंस। ज्योति जाना नहीं। Ich denke, dass sich erkälten। रिपीट द सेंटेंस। नहीं, Ich denke, dass sich erkältet hat. erkälten hat। ओके, या रिश्तेश, शाबाश। ओके, वर्ब सिंपल है एक्चुअली, लेकिन वापस रिपीट करने में कभी कभी जोर आता है। जिश अर्किल्टन। I think that you have understood the verb. I think that you have understood the verb.
Ich denke das. You have understood the verb. Hier das Verb verstanden. हाट या हाफ्ट? हाफ्ट. ईयर बोला ना, ईयर के साथ हाफ्ट. Ich habe, du hast. मुझे लगता है कि तुम सब समझ गए हो. ईयर, ईयर के साथ हाफ्ट और एयर के साथ हार्ट. ओके, मुझे लगता है कि मुझे ये सेंटेंस रिपीट करना चाहिए. I think that I should repeat the sentence. Ich denke, dass ich wiederholen die Satz, der Satz wiederholen. Accusative में क्या होगा? Den Satz या wiederholen. मुडालवर्ब भी आएगी. जोल चाहिए भी बोला था. Ich denke, dass ich soll. जोल अभी नहीं आएगा. Okay, हाँ समझ गया. Ja, ich denke, dass den Satz आप wiederholen soll. ये सब्जेक्ट नहीं बोला ये. ओके, मे बी अनु, repeat the sentence. I think that I should repeat the sentence. पहले अनु बोलेंगी, फिर ओके. अनु, I think that I should repeat the sentence. Repeat. Yeah, just one. Ich Ich denke, Sie, ich denke, dass. Ich denke, dass so, nein, den Satz wiederholen Ich denke, sollte. dass ich den Ich Satz denke, wiederholen soll. Ich denke, dass ich den Ich Satz denke, dass wiederholen Den soll. Satz den wiederholen soll. sollte. Offline student. Ich denke, dass ich den wiederholen sollst. Ich den Satz wiederholen soll. Soll. कोई झोल नहीं इसमें, सिंपल सेंटेंस है ये. ओके, यस. सो हम कनेक्टर को यूज करेंगे. एक्चुअली ये कनेक्टर थोड़ी हमको अनकंफर्टेबल कर देता है. हमारी आदत है नॉर्मल वर्ब की पोजीशन, सेकंड पोजीशन. या आई थिंक दैट आई शुड रिपीट द सेंटेंस. ये था Ich denke, dass ich den Satz wiederholen soll. क्योंकि जोल सेकंड पोजीशन पे आता है, कंजुगेट होता है, लेकिन जब कनेक्टर है तो वही लास्ट में चला जाता है. Ich denke, dass ich den Satz wiederholen soll. अब ये सेंटेंस कोई कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी दिमाग में स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है ज्यादा. अचानक से नहीं बोलता, या फिर वो लास्ट में नहीं आता, या फिर बड़ा सेंटेंस हो गया थोड़ा सा. ये आपके लिए चैलेंज है, इसलिए जानबूझ के मैं करा रहा हूं कि आपकी कैपेसिटी क्या है. कुल मिला के हम लोग A1, A2, B1, B2 में हमारे को ग्रामर सीखने के बाद में कितने सेंटेंस एक साथ रख सकते हैं, बोल सकते हैं. आप अगर खाली टाइम में प्रैक्टिस करना चाहो जर्मन की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. Es ist schon dunkel, die Uhr am Michel schlägt 9 Mal. बिना देखे बोल सकते हैं क्या? Es air नहीं. Es ist schon dunkel, die Uhr am Michel schlägt 9 Mal. 9 Mal. फिर अगली बार पढ़ो और कोशिश करो कि आप 3-4 सेंटेंसेस एक साथ बोल सकते हो कि बिना देखे, और फिर कोशिश करो पूरा का पूरा पैराग्राफ एक साथ बोल सकते हो क्या. इससे क्या होगा? इससे आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी बढ़ेगी. मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई पूछेगा थोड़ी है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलेगा, अच्छा मॉल आया, यहाँ पे इम आया है, और वापस नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब है कंट्रोल नहीं है ग्रामर पे. तो ऐसे कोशिश कर सकते हैं आप. Er weiß noch nicht,
Thus, these are Tag ganz anders Bild. जो आदमी पूरा रट नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसको ग्रामर पे भी पकड़ नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ग्रामर पे पकड़ हुए बिना रटा भी नहीं जा सकता। नहीं सर मैं रट्टू हूं एकदम, कितना ही रट्टू है तू, फिर भी अगर ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो याद ही नहीं आता। ओके निश्ट मतलब नथिंग, Nothing. नोट नहीं है, नथिंग। निश्ट आउटसुक Elevator. लिफ्ट Elevator. Elevator. Lift. मतलब यस। सर लिफ्ट टुर्म टावर, टावर या डेट टुर्म, आर्टिकल बिल्डिंग डेट टुर्म होता है इसका। टुर्म मतलब टावर, और एक बड़ा सा गेट होता है उसको क्या बोलते हैं? टोर। Door. स्टोर, Store. Das Store. टूर, Pure. देयर टुर्म। द स्टोर का मतलब है बड़ा सा दरवाजा, द स्टोर। Main gate तक. अगर मान लो किसी ने बोल दिया डेयर टोर, डेयर टोर का मतलब है मूर्ख आदमी। डेयर टोर अगर किसी ने बोल दिया तो मूर्ख आदमी। और यार इससे बहस मत करो यार, क्यों? अरे मूर्ख है एकदम, तो तू नहीं करता ना, मैं कभी नहीं करता। मूर्ख को टका देना लेकिन ज्ञान नहीं देना। डेयर टोर, ये समझेगा नहीं, बहस करेगा। तो डेयर टोर का मतलब है मूर्ख, एकदम बावड़ा। और द स्टोर का मतलब है बड़ा वाला गेट, और दी ट्यूर का मतलब है डोर, जैसे घर का दरवाजा छोटा। और टुर्म टावर, जैसे टावर Tower. रेडियो टावर। या सर मीनार भी हो सकता है, टोर मीनार टावर। ओके ट्रैपेक आर्टिकल डी ट्रैप D trap है. ब्यूरो का आर्टिकल Das. दास Das Bureau. Das Bureau. ब्यूरो तो होता है ऑफिस, और अम्ट क्या होता है? अम्ट तो नया वर्ड है अपने लिए। ओके तो एक वर्ड होता है आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब भी ऑफिस होता है, लेकिन इस आर्म्ड का जो आर्टिकल होता है वो होता है दास आर्म्ड, और ब्यूरो का दास इसका भी ब्यूरो। दास। लेकिन जो आर्म्ड है इट इज यूज्ड ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफ्तर, उसके लिए दास आर्म्ड है। दोनों आर्म्ड ही मतलब है दोनों ऑफिस ही, लेकिन दोनों का आर्टिकल भी दास है, लेकिन सरकारी ऑफिस होगा दास आर्म्ड, और नॉर्मल जनरल ऑफिस ब्यूरो। क्या सरकारी ऑफिस को ब्यूरो नहीं बोल सकते? ब्यूरो तो किसी भी ऑफिस को बोल सकते हैं, लेकिन आर्म्ड केवल सरकारी ऑफिस को बोलते हैं। इट इज ए जनरल वर्ड, ब्यूरो और आर्म्ड। ओके das gefällt ihm sehr मतलब It makes it that बहुत ज्यादा pleases पसंद आया। a lot। मुझे ये घर पसंद है। How to say this? Das Haus gefällt mir. Ich mag dieses Haus. Das Haus. Das Haus gefällt mir. If you say I like the house, then you say ich mag। I like बोल रहे हो तो मतलब I चाहिए आपको, तो इश्माक से बनेगा ये। लेकिन आप कह रहे हो कि it pleases me, ये I नहीं है, ये me है। It pleases to me मतलब ये चीज मुझको पसंद है। मुझको तो डाटिव होगा ना, मुझको मैं नहीं हूं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ Das gefällt mir. das gefällt mir। Das gefällt mir। म्योगन में आई आएगा, लेकिन गिफालन में मी आएगा, टू मी। कुल मिला के दोनों तरह से किसी चीज को कह सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए गिफालन के केस में पर्सन को डाटिव बनना पड़ता है,
और जो भी चीज है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं अपन। ये बोर्ड मुझे बहुत पसंद है, दी टाफल gefällt mir। ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है, दी Jacke gefällt mir। If I Gefällt say mir। I like you all, Ismark, Geschmack. Ich mag। you all like me, ihr mögt Yes. mich। Ihr mögt mich। हम सबको जर्मन पसंद है, जर्मन हम सबको। कौन सी वर्ब आएगी, म्योगन आएगी कि gefallen आएगी? Wir जर्मन mögen हम सबको पसंद है। Mögen. 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 Yes, Miogan. Deutsch। Deutsch gefallen आएगी। uns Gefallen. हम सबको। मैं अगर बोलूं हम सब जर्मन पसंद करते हैं, तो हम करते हैं तो आएगा wir mögen Deutsch। Wir mögen. और ये चीज हमको पसंद है तो das gefällt uns। सर तो डिफरेंस क्या हो गया फिर इसमें? उधर से है। सर एक बार डिफरेंस बताना सर। कुछ खास नहीं है, नहीं है। ओके, मतलब अगर आपकी तरफ से कोई बात जा रही है तो इश माग, इसमें तो आप एक्टर हो, आप सब्जेक्ट हो। यू लाइक, कोई चीज आपको पसंद आ जाती है, कोई चीज जो है वो है मैन। आप फिर ऑब्जेक्ट बन गए, एजेंट क्या बन गए, लेकिन ऑब्जेक्ट बन गए। यस, पसंद करना और पसंद आना। Sir, I should like. I'm sorry. I'm sorry. सर ये मार्क के लिए, थिंग के लिए यूज किया है ना मार्क, और अगर प्लेस के लिए यूज करना हो तो फिर भी यही आएगा, मतलब किसी चीज को भी जगह के आप लिए अगर चाहिए। किसी को पसंद करते हो, किसी आदमी को पसंद करते हो, किसी जानवर को पसंद करते हो, किसी किताब को, घर को पसंद करना इज म्योगन, और पसंद आना टू प्लीज Gefällt। gefallen। 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 या A1 में कुछ वर्ड सीखी हमने, उसमें थी gefallen, डाटिव वर्ब थी सर ये। उसमें थी Dative verb। दाटिव में Gefallen। ग्रेटुलेरन में आप कहते हो आई कॉन्ग्रेचुलेट। इस कैटेगरी की वर्ब नहीं है ग्रेटुलेरन, दाटिव तो है लेकिन इस कैटेगरी की नहीं है। एस्केट इस कैटेगरी की है, एस्केट। स्मैकन इस कैटेगरी की है, स्मैकन। टू टेस्ट। टू टेस्ट मतलब इट टेस्ट्स मी गुड, ये चीज मुझको अच्छी टेस्ट, अच्छा टेस्ट दे रही है, ये चीज दे रही है मुझको। दस स्मैक्ड मियर मतलब ये वर्ब पर्सन को ही डाटिव बना देती है, बहुत तेज है ये वर्ब। लेकिन आप अगर बात करो ग्रेटुलियरन, डंकन, ये वर्ब अंटवोर्टन, हेल्फन, वैसे तो हमने इन सबको एक साथ ही सीखा है, ऑल आर डाटिव वर्ब्स, लेकिन इनका यूज थोड़ा सा ट्रिकी है। A1 में आपने सोचा आगे आगे आया नहीं था, आया नहीं था, अभी भी आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, पर्सन एक्टर होता है जनरली। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, इस ग्रेटुलियर है डियर, तो इस तो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है। लेकिन अगर आप ये वर्ब यूज करते हो तो पर्सन डाटिव बन जाता है। वी गेट एस इनन, इनन मतलब डाटिव, हाँ डाटिव पर्सन। मियर गेट एस गुड, इस गेट एस गुड तो नहीं बोल सकते ना, बोलती तो नहीं हो, हाँ मना कर रही है नहीं, इस गेट एस नहीं बोलते, एस गेट मियर बोलते हैं। मियर मतलब खुद को डाटिव बना लेते हैं। यस, तुम्हारे पापा कैसे हैं, कैसे बोलूंगा, तुम्हारे पापा कैसे हैं, वी गेट एस
डाइनम ना, यस। मतलब पापा का हाल पूछा तो पापा डांटे, पापा का हाल बताऊंगा तो भी पापा डांटे। माइनम फाटर गेटेस गुड, माइनम फाटर बोलना पड़ेगा, शुरू में रखो चाहे लास्ट में रखो। एस गेट माइनम फाटर गुड, जिसका हालचाल पूछा या बताया वो डाटिव बनेगा। ऐसे नहीं कह सकते माइन फाटर, वो गलत होगा, माइनम फाटर ही आएगा। बुआ जी कैसे हैं? वी गेट एस डाइनर टंटे, Minus tanta get इसको बोला तूने? minus tata tanta. पूरी आंटी अच्छी है क्या? मेरी आंटी अच्छी है, मतलब अच्छी है का मतलब दिखने में अच्छी, वो मतलब नहीं है, हालचाल। मैंने टंटे इज गेट गुड। ना 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 ना, ये मैं कह रहा था ना कि ये इवन में लगा आगे आई नहीं है। मेरी आंटी जी अच्छी है का मतलब है हालचाल के लिए काम में ले रहे हैं हम। ये क्या होगा? एस गेट माइनर टांटे गुड, या फिर माइनर टांटे गेटेस गुड। जिसका भी हालचाल बताओगे, चाची का बताओगे तो चाची को डाटिव बनाना पड़ेगा। तुम्हारी तुम्हारी जो आंटी है वो डाटिव है, बता देना उनको। ओके ओके। तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? दादाजी का हालचाल क्या है? Minus opa get good. We get Minus- dynam opa. वी गेटेस डाइनम ओपा, वी गेटेस डाइनम ग्रोस फाटर। मेरे दादाजी तो बढ़िया हैं, अच्छे हैं। Minum Pater Minum gross fater getes. या एस गेट माइनम Pat- ग्रोस फाटर गुड, माइनम ग्रोस फाटर गेटेस गुड। ओके, डाटिव वाला पहले बोलते हो तो थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया बनता है। माइनम ग्रोस फाटर गेटेस गुड, एस गेट माइनम ग्रोस फाटर गुड, ये नॉर्मल सा लगता है। डाटिव को पहले रखते हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है सेंटेंस में। तुम कैसी हो कैसे बोलेंगे इसको? Mir geht es gut. ओके ठीक है, एस्केट मियर गुड भी बोल सकते हैं या मियर गेटेस गुड। तो अक्सर आपको सुनता है मियर गेटेस गुड, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं तो मैं में मियर क्यों हो रहा है? वो इसके कारण हो रहा है। बोलने को हम बोलते हैं मैं ठीक हूं, इस बिन गुड तो नहीं बोलता कोई बैठा हो यहाँ पे, बोलना नहीं है। Nein. टांग है। कभी कोई बोलेगा तो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। एस गेट मियर बोलना पड़ेगा, मियर गेटेस बोलना पड़ेगा। गलती से भी इस बिन नहीं बोलना है। बोल दे तो क्या हो जाएगा? क्या समझेंगे नहीं लोग? यस, ये समझ जाएंगे, ये अभी नया है। ये सर समझ जाएगा, लेकिन अभी आइन विशन है। स्मेकन, das schmeckt mir gut। ऐसी थोड़ी कहते हैं इस स्मेक है, das schmeckt mir। Die Pizza schmeckt mir gut. या और पासन भी इसी में शामिल हो। एयर स्मेक्ट मियर गुड तब हो सकता है भैया। सर ये बन सकता है ना, डी शोकोलाडे स्मेक्ट मियर प्रीमा, बिल्कुल हो सकता है। ओके, vielleicht मींस maybe, Maybe. vielleicht nicht, maybe, may not be, Maybe not. maybe not। Klopfen, what is klopfen? To knock. Knock, Door. नॉक करना। Knock. The door. klopfen। My mobile is ringing, क्या है इसके लिए वर्ड? Klingeln. Meine Hand ist klingt. माइन हंडी Meine Hand ist Klingeln. Klingeln. क्लिंगल बजना। क्लिंगेल्न, या एक तो क्लिंगल। होता है क्लिंगन, ये नहीं है वो है सर क्लिंगेल। GELN इसका मतलब है टू रिंग और इसका मतलब है टू साउंड। जिसे कोई बोले इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, es klingt gut, Es klingt gut.
यस, मैं आप लोगों को जल्दी पार्टी देने वाला हूँ। Es klingt gut. Klingt gut, ये बोलना पड़ेगा। ये थोड़ी बोलोगे कि सही बज रहा है, अरे रिंग नहीं कर रहा है ये। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, ये बात आपको पसंद आई। हाँ, तो यही बोलेंगे ना, कुछ भी रिंग के लिए यही आएगा। डेरवेकर, क्लिंगेल्ट, क्लोफन तो होता है टू नॉक, दरवाजा कोई खटखटा रहा है। क्लोफन, 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 क्लोफन। ओके, व्हाट इज लाइज है? Slowly. Slowly. ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब। Adverb. सकते हैं Adverb है सर. तो adverb. वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। इट्स एडवर्ब। एडजेक्टिव भी यही होता है, लेकिन उस टाइम पे वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, Entschuldigen, Excuse me. Sorry. Excuse me. Sorry. Kleidung, Clothes. Clothes. कपड़े. कपड़े. Class, Class Correct. नाम. सर नाम नाम है सर। ओके, Class है. नॉर्मलर वाइज है। Normally. Normal. ये वर्ड आपको लिखना है, और नॉर्मल वाइज मत बोल देना, ER भी है इसमें, नॉर्मलर वाइज है, नॉर्मलर वाइज है। इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मैं लिखवाऊंगा आपसे, उस टाइम पे आप नॉर्मलर लिखते हो कि नॉर्मल वाइज है बोलते हो। ओके सर इसका What मीनिंग is क्या होता है? game? Normally. Normally. To go. Normally To go. to go, हाँ to go। Cascade, cascade means It goes. it goes। यहाँ पे इसका मतलब है चलना, it goes मतलब ये चलता है, चलता है। cascade, और एक वैसे चलना होता है और एक ऐसे चलना होता है, मतलब बात, ये बात चल जाएगी, हाँ ये चल जाएगी। cascade, सर अगर बोलना हो कि आजकल ये फैशन चल रहा है, उसमें भी 10 गेट आ जाएंगे। बोल सकते हैं। गेट, लॉफ्ट, लाउफन ज्यादा यूज होता है वहां पे, एस लॉफ्ट, या फिर das ist in। फैशन के लिए जनरली आप बोलते हो das ist in। इन का मतलब ही है im trend, या तो इन बोलो या das ist im trend। ओके, डिस्ट्रेटन ओरिजिनल वर्ब क्या थी? स्ट्राइटन। स्ट्राइटन मतलब लड़ाई हो जाना, झगड़ा To करना। argue. राइटन, झगड़ा करना। या gestritten, wir haben uns gestritten, sie haben sich, wir haben uns gestritten। ये uns क्यों आ रहा है? सर वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है सर। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वही वापस रिपीट हो रहा है, तो समझ जाओ कि उनका क्या काम है, क्योंकि ये जिस था, द वर्ब इज gestritten, wir haben uns gestritten। क्या तुम लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट करते हो, मना करते हो, झूठ बोलते हो? ओ, झूठ बोलने के लिए है ल्यूगन, ल्यूगन। लियोगन, झूठ बोलना। ल्यूगन, हाउ टू से, क्या तुम झूठ बोलते हो? Looks to. Looks to, looks to do। अब बोलो मैं तो बहुत कम झूठ बोलता हूं। इस ल्यूगे ज़ेल्टन, इसलिए हो गया Rare। वेनिश। सर यहाँ पर वेनिश भी हो सकता है ना। इस ल्यूगे
ab und zu, कभी कभी झूठ बोलता हूं. Ich lüge fast nie, almost never. Ich lüge nie, never. मैं झूठ बोलता ही नहीं और फिर झूठ बोल दिया. Ja? Lügen. Ich lüge oft. मैं तो अक्सर झूठ बोलता हूं. Ich lüge also sehr oft. Er lügt immer. हमेशा झूठ ही बोलता हूं. Sometimes, manchmal. Manchmal. Er lügt manchmal. Er lügt mal und mal. Mal und mal. Again and again. Mal und mal. Okay. अब und zu पहले आना चाहिए, जेल्टन बाद में आना चाहिए. अगर अपन इसको सीक्वेंस में ले तो अब und zu जेल्टन. ये फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स है. फ्रीक्वेंसी ऊपर जो लिखे हैं मैंने वो 3 वर्ड लिखे हैं. ऑफ्ट, sehr oft और इमर. ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं. हाउ ऑफन यू डू इट. दूध पीते हो? सर कभी कभी पीता हूं. Ich trinke manchmal Milch. Die Milch. या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हाउ ऑफन यू ड्रिंक मिल्क. हाउ ऑफन. Wie viele? वी ऑफ्ट. वी ऑफ्ट का जवाब इनमें से कोई भी हो सकता है. sehr oft, ab und zu, selten, nie, fast nie. शॉपिंग तुम कहां करते हो? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन. हाउ ऑफन यू डू शॉपिंग ऑनलाइन. वी ऑफ्ट kaufst du online ein. Ich kaufe online immer ein, manchmal ein. ये ein क्यों बोल रहा हूं मैं? Einkaufen verb यूज कर रहे हो. क्योंकि ये वर्ब ही सेपरेबल थी और जब तक ein नहीं बोलूंगा सेंटेंस अधूरा है. क्या? जूते आप कैसे खरीदते हो? ऑनलाइन की ऑफलाइन? इसके लिए डब्ल्यू वर्ड कौन सा आएगा? वी. वी का मतलब है हाउ. वी ऑफ मीन्स द फ्रीक्वेंसी. हाउ ऑफन. कितने दिन में बाल कटाते हो? वी ऑफ्ट लेस टू deine Haare schneiden. Jeden Monat. Okay. Ja, ich in 2 Monaten. Okay. क्या तुम अपने बाल खुद काटते हो? नहीं, खराब दिख रहे इसलिए नहीं पूछा है. वैसे ही क्या तुम अपने बाल खुद काटते हो? कैसे बोलेंगे? Schneidest du deine Haare selbst? Selbst का मतलब है सेल्फ. सेल्फ. क्या तुम खाना खुद बनाते हो? कैसे बोलेंगे? डू यू कुक योर फूड योर सेल्फ? मेरी मम्मी मेरा खाना बनाती है. Meine Mutter kocht mir das Essen. Kochenwechsel है. Kochenwechsel है मतलब NVDA. Meine Mutter kocht mir das Essen. Meine Mutter kocht
mir kocht das mir Essen. das Essen. अगर मैं बोलूं क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? Coke dynam क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती? Coke dynamotor dear das Kocht Essen nicht Koch dynamometer. Kocht dynamotor dear das Essen. mir Mir nicht das Essen. पहले क्वेश्चन बनाना है, आंसर नहीं देना है. Kocht deine Mutter dir Dear das Essen. nicht? Nicht das Essen. Kocht deine Mutter dir das Essen nicht? देखो परेशान हुए ना सेंटेंस में. Kocht kocht dynamotor 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 dear Dear das Essen nicht. क्वेश्चन है. Yes sir, question. तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितनी बार खाना बनाती है? कितनी बार मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी. Wie oft? Wie Wie oft deine Mutter Wie oft? dir das Essen? Wie oft Wie dynamotor oft das Essen? Wie oft deine Mutter Wie oft Dear dynamometer das das Essen. das Essen kocht. Okay. Geworden means become. Become, To became, become. become. To Okay, become. ये परफेक्ट है. Vielleicht ist jemand in seiner Familie krank geworden. ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है? What kind of sentence it is? Page 5. Present perfect. ये इस्ट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि werden जाइन लेती है. Werden ist geworden. Sein ist gewesen. Fliegen ist geflogen. तो जब आप कहानी पढ़ रहे हो, कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो, आपको क्रिटिकली देखना है उस सेंटेंस को. मतलब कोई पेज पढ़ रहे हो, आपको मान लो कि कहानी दी, अरे मैंने निपटा दी. आप ऐसे निपटाते हो बिना समझे तो वर्ड याद नहीं होते. कहानी हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको वोकैब बिल्डिंग करनी है. द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैब इज स्टोरीज. इसके अलावा कोई तरीका मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया. अलग अलग खूब सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हमने. कहानी से एक ही दिन में आदमी 50 नए वर्ड सीख सकता है. एक ही दिन में. अगले दिन फिर 50, अगले दिन फिर 50, और वो याद भी रहते हैं, टिक जाते हैं वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट होता है और उसमें एक स्टोरी लाइन चलती है, तो दिमाग में याद रहता है. इमिशन ज़ुफोर्ट मतलब इमीडिएटली. Immediately. Hospitals. प्लूरल है. अनरूफन. व्हाट इज उनफाल? Accident. Accident. Death. Der Fall. Der. Unfall, der Unfall. Fall. Fall is case. Unfall is accident. Ausfall, blackout. Stromausfall, लाइट चली गई, ब्लैकआउट हो गया, कोई लाइट ही नहीं बची कहीं. Ausfall, फाल, फाल का मतलब गिरना भी होता है और फाल का मतलब केस भी होता है. फाल. Losses then loss. Loss मतलब मैटर. What's the matter? अलग से कई वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में पूरे सेंटेंस में मीनिंग आता है. आपको पता है जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, कभी कभी पूरी लाइन का ट्रांसलेशन होता है, कभी कभी पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन होता है. पता है आपको कि कभी कभी पूरे पैराग्राफ से ही ट्रांसलेशन निकलता है, ऐसे पता ही नहीं चलता कि स्टोरी में हो क्या रहा है. तो अकेले अकेले का ट्रांसलेशन ही नहीं हो सकता.
और हम लोग सोचते हैं कि ये वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। वो सेंटेंस समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी पूरा का पूरा पैराग्राफ करने से ही पूरा मीनिंग बनता है, अदरवाइज मीनिंग ही नहीं बनता। तो परेशान नहीं होना, कभी कभी आपको ऐसे लगे कि मेरे को वर्ड तो आते हैं लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, वो पूरा करोगे तब आएगा आगे। Sie kennen ihn ja, Frau Luders, das ist Brigitte Brand vom NDR. Sie macht eine Reportage. Reportage? Reporting. रिपोर्ट Trumpeter. Trumpeter? ट्रम्पेट को बजाने वाला, पो पो पो, ट्रम्पेट। Gespräch का आर्टिकल क्या होगा? दास Das Gespräch. दास गेस्प्लेस बहुत सारे वर्ड्स, नॉट ऑल द वर्ड्स, ठीक है, सारे नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे वर्ड जो जीई से स्टार्ट होते हैं उनका आर्टिकल दास होता है। हर बार नहीं है ये, कहीं आप कल ही पकड़ लो मुझे, बट बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे। Gebäude, das Gebäude, Gespräch, das Gespräch, Gemälde, das Gemälde, ओके। देखो ये देखो इनका तमाशा देखो, कहना कुछ नहीं है, इनका ड्रामा देखना है बस। कौन जीव है ये? मयंक होगा, मेरे को क्या लगता है, नहीं? ओके ठीक है, जो भी है मयंक ही होगा, नहीं तो बुरा मान जाता। ओके ठीक। क्रांकन हाउस का आर्टिकल एक और तरीका फास्ट वोकैब। हम लोग वोकैब बिल्डिंग की बात कर रहे हैं इस बहाने से। आप लोगों को क्लस्टर में अगर वर्ड सीखने हैं, तो अभी मैंने बोला क्रांकन हाउस, तो आप एक काम करो, हाउस को पकड़ लो और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे करो, ठीक है? जैसे क्रांकन हाउस बोला, क्या था? क्रांकन हाउस, हाउस और क्या होता है? हाउस हाल्ट, गेस्ट हाउस, हाउस हाल्ट, गास्ट हाउस बोला आपने, शाबाश, गास्ट हाउस। मतलब जिस वर्ड में हाउस आ रहा है, हाउस, गास्ट हाउस, हाउस टेस्टेले, क्या? हाउस डिंस्ट, हाउस ओके, हाउस टेस्टेले, हाउस टेस्टेले, हाउस कॉमन, ओके। क्या होता है ये वैसे? बस स्टॉप, वो तो बस तो बूस्ट टेस्टेले, वो तो बूस हाल्टेस्टेले होता है, ओके। तो हाउस हाल्ट मतलब हाउस होल्ड, हाउस आर्बाइट, गास्ट हाउस, ट्रंकन हाउस, हाउस एल्टन हाउस, राट हाउस, एल्टन हाउस, सर, राट हाउस हाउस, कॉमन, एल्टन हाउस, हाउस ऑफ गाबे, बट सदी होता है इसका आर्टिकल, द हाउस ऑफ गाबे, होमवर्क, ओके। या होक हाउस, होक हाउस, होक हाउस, हाउस आर्स्ट, फैमिली बाउनर डॉक्टर, हाउस, हाउस फ्राउ, हाउस फ्राउ, हाउस मन, हाउस फ्राउ। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मेयर फैमिलियन हाउस, मेयर Familienhaus, ein Familienhaus, zwei Familienhaus, drei Familienhaus, फिर अच्छा हाँ, मतलब हो सकता है इस तरह के। मतलब आप एक कीवर्ड को पकड़ो और उससे रिलेटेड 10 एक आपको मिल जाएं। आर्बाइट हो सकता है, आप आर्बाइट क्लास, सपोज आर्बाइट को पकड़ा आपने, आर्बाइट्स प्लाट्स, हाउस आर्बाइट नहीं, हाउस ऑफ गाबे, आर्बाइट से क्या हो सकता है? आर्बाइट सीमर, आर्बाइट सीमर, जिनियोरन हाउस, तो हाउस में आएगा, शाबाश। आर्बाइट स्लोस, जोबलेस बंदा, आर्बाइट स्लोस, ब्यूरो आर्बाइट, ओके, इट्स ऑलरेडी देयर। ब्यूरो आर्बाइट बोला आपने, शाबाश, ब्यूरो आर्बाइट, सर हाउस हेल्पर क्या आएगा? हाँ, हाउस हेल्पर, हाउस हेल्पर,
गेहिल्फ है बोलते हैं वैसे तो हाउस हेल्पर को, गेहिल्फ है। अर्बाइट से किसी को वर्ड याद आ रहा है? अर्बाइट्स प्लाट्स, सर वर्किंग अर्बाइट्स्टाग, वर्किंग डे, वर्किंग ग्रुप, ओके। रिस्टिश, अर्बाइट्साइट, Right look. वर्किंग टाइम भी होता है, अर्बाइट्साइट, अर्बाइट्सटेले, अर्बाइट्सस्टुंडे, ओके। तो मतलब आप एक की वर्ड को पकड़ो और उससे रिलेटेड वर्ड, उससे क्या होता है फिर वो याद रहने लग जाता है। और फिर अपने आप मान लो ये सोचो कि ये वर्ड आपने रिलेटेड एक जगह लिख लिए तो इनको याद करना इजी हो जाता है और फिर वो राइट टाइम पे अपने आप आएंगे काम में। उसको आर्टिकल के साथ जरूर लिखना, लेकिन क्योंकि इसमें जो बोस है वो लास्ट वाला पार्ट होता है। जैसे मान लो हॉक हाउस, तो हाउस के हिसाब से आर्टिकल होगा। हाउस हाल्ट तो डेर हाल्ट होता है, तो डेर हाउस हाल्ट होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब हाउस तो दास होता है लेकिन ऑफ काबे दी होता है, तो पूरे का मिला के आर्टिकल होगा वो दी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ऐसे आपको क्लस्टर में लर्न करने पड़ेंगे वर्ड्स। वोकैब बिल्डिंग आपको A2 में ही B1 का समझ आना चाहिए कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो, आपकी वोकैब फास्ट बिल्ड हो रही है और आप स्टाम्टिश में भी A2 में ही बोल रहे हो, तभी मजा है। दास होना चाहिए। गे से स्टार्ट होने वालों का ज्यादातर का दास होता है, ज्यादातर का। तो तुक्का मारना हो तो दास गेजिस्ट। गेब्यूर का क्या होता है सर? हाँ, गेब्यूर इसका अलग है मामला, ये एक्सेप्शनल केस है, सही ढूंढ के लाए हो। इसका दास नहीं है। शाबाश, यस। तो एक्सेप्शनल भी केसेस शेयर किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने बोला ज्यादातर। ग्लाउब है, आर्टिकल क्या होगा? डी। तो यहाँ पे तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। बिलीव, वर्ब के आर्टिकल नहीं होते। लाउबन बिलीव। अगर किसी भी वर्ब को नाउन के तौर पे करोगे तो फिर तो 10 ग्लाउबन हो जाएगा। दास हो जाएगा। हर एक वर्ब अगर नाउन के तौर पे आएगी तो होगा, लेकिन यहाँ तो वर्ब है, वर्ब के आर्टिकल नहीं होते। एक वर्ड है जेल्टजाम, स्ट्रेंज, अजीब। कॉमिश, अजीब, ये भी स्ट्रेंज। कॉमिश, geguckt। इसका क्या मतलब? Aber hat nur komisch geguckt und nicht gesagt. He just looked strange and did not say. Right? मान लो हम लोग रोज मिलते हैं और मिलते ही नमस्ते करते हैं एक दूसरे से, और एक दिन आप आओ और यूं देख के चले जाओ, तो इसका मतलब ये तो है नहीं आपने देखा नहीं, आपने देखा लेकिन नमस्ते नहीं किया, तो हम समझ जाएंगे आज कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चला आपकी सिर पे पतंगी थी, तो वो उसको देख के जा रहा था, या फिर हो सकता है मूड खराब था, कुछ भी कारण है। होरबाई गेगांगन मतलब सामने से जाना, सामने से निकल कर जाना, सामने से जाना। या डायरेक्ट an mir vorbeigegangen, an mir vorbei, an mir तो वैसे ही an vorbei में डाटिव होता है, इसलिए ये mir आया है। टैटू, तो आर्टिकल क्या होगा? दास टैटू। यस, तभी आइन टैटू आया। Yeah, that's datum. तो आइनन आता, क्या दास टैटू है? नहीं तो आईना आता या आइनन आता। अब आकुजाटिव वर्ब है, इसलिए दास टैटू। कभी कभी वर्ड का आर्टिकल नहीं पता हो तो हमको वर्ब से देख के अंदाजा लगता है। अगर ये मैस्कुलिन होता तो आइनन आता यहाँ पे,
फेमिनिन होता तो आईना आता। एंग्स्टलिश, डरी हुई। उम्ब्रिंगन, टू किल, उम्ब्रिंगन इज टू किल, मार डालना। उम्ब्रिंगन, ihr Ex-Freund wird Klaas doch nicht gleich umbringen, मतलब तुषार का Not चालू है सर, safe. तुषार नोट करने के लिए बोलो ना सर। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे नए वाले फ्रेंड को जान से थोड़ी मार देगा, फ्यूचर के लिए है। विड उम्ब्रिंगन, जान से थोड़ी मारेगा। इसने बोला दा bin ich mir nicht sicher, मुझे भरोसा नहीं है उसका, वो मार देगा। इसका I'm मतलब not ये है sure. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब मुझे तो डाउट है मारेगा। वो कह चुका है, एक बार गला पकड़ चुका है उसका। Nille läuft jetzt nervös, वो इधर उधर नर्वस होके दौड़ती है। Astor schließt schnell die Tür zum Büro ab, वर्ब क्या है ये? Abschließen. से To close. Absolution to to close. close, to close, close के लिए भी वर्ब जैसे एक वर्ब आई यहाँ पे schließen, abschließen, Zumachen. to machen, और ओपन के लिए Ausmachen. Aufmachen. anmachen, Aufgehen. einschalten, ausschalten, okay, Geschlossen. ausdrehen, ausdrehen, zudrehen। देखो ausdrehen का मतलब है टू ओपन, लेकिन जैसे कोई बोतल वोटल को खोलते हैं ना, aus का मतलब वैसे ओपन है, aus। अब मैं अगर बोलता हूं aufmachen तो है टू ओपन, जनरली दरवाजा वगैरह खोलने के लिए aufmachen, किसी भी चीज को खोलने के लिए aufmachen हो सकता है। लेकिन drehen का मतलब है एक तरह से घुमाना, घुमा के खोलना। हाँ, जैसे बोतल वोटल को आप घुमा के खोलते हो कभी कभी, तो उसका aufdrehen। और सू का मतलब जनरली क्लोज का सेंस आता है, नॉट ऑलवेज, जनरली बोल रहा हूं। तो ये सेपरेबल वर्ब है। आई एम ओपनिंग द डोर, इश मक है दी ट्यूअर auf, या इश मक है दी ट्यूअर auf, आई एम क्लोजिंग द डोर, इस मक है द ट्यूअर टू, आई हैव क्लोज्ड द डोर, प्रेजेंट परफेक्ट। Ich habe die Tür zugemacht, gemacht. zumachen का zugemacht, Zugemacht. ich habe die Tür zugemacht, I have not closed the door, मैंने नहीं किया, कोई और बंद कर गया तेरे को। I have not closed the door, ich habe die Tür nicht zugemacht, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। I will close the door, ich werde die Tür zumachen, close बोला ना, no problem, I will open the door, kein Problem, I will open the door, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। Ich werde die Tür Schwert. zumachen. Ich werde. Ich werde die Tür aufmachen. Auf- Who has closed the door? Who has closed the door? Wer hat die Tür Who has aufgemacht? closed? बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है।
Where hard the tour of gemacht? Where hart, Die Tour aufgemacht. क्लोज बोला है मैंने, zugemacht, Zugemacht. Zugemacht. hart. मैं आंखें बंद कर रहा हूं, इस mache die Augen zu. I'm opening the eyes, इस mache die Augen auf. Auf. अब Ich mache ein Auge zu. Ich mache das zweite Auge zu. Ich mache die beiden Augen zu. Nein, auf. Open करना है, auf machen. ऑफ मकन Zu, auf. Zu, auf. The tour zu. कभी कभी कोई पूरा भी नहीं बोलते, आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में. The tour is zu. मतलब क्लोज. बंदा ये कहना चाह रहा है the tour is zugemacht. तो zu का सेंस क्लोज का दे देता है और auf का सेंस कभी कभी ओपन. The Augen sind auf. सर einschalten क्या बताया? बताया नहीं अभी, आऊंगा. अभी यही है हम लोग, वहां पहुंचे नहीं जहां तुम पहुंच गए. ओके, तो aufmachen is to open, zumachen is to close, unmachen is to on. On, हाँ. कभी कभी मान लो आप रिमोट से भी किसी चीज को ऑन करते हो ना, उस केस में जनरली हो सकता है अनमाखन बोले. जरूरी नहीं है रिमोट से ही, बट अन का मतलब ऑन, टू ऑन. ये है टू ओपन, टू क्लोज. ये है टू ऑन. ऑफ करने के लिए ausmachen. 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 To on, to off. On, off. On, off. ये है open, close. Open, close. Einschalten, ausschalten. Generally switch on, switch off करना हो किसी चीज को, खास तौर पे स्विच की तरह. अब दरवाजा खोलना बंद में स्विच का कोई रोल नहीं है, लेकिन बटन से स्विच से ऑन ऑफ करना हो उस केस में जनरली लोग einschalten, ausschalten. अरे कंप्यूटर स्विच ऑन करो. Ich habe den Computer eingeschaltet. या फिर ऐसे ही बटन को ऑफ कर देता हूं मैं. Ich habe das Licht ausgeschaltet. Eingeschaltet, ausgeschaltet. Eingeschaltet, ausgeschaltet. Eingeschaltet. Okay. So, aufmachen ist to open, zumachen ist to close, anmachen ist to on, ausmachen ist to off. Einschalten is to switch on. अब आगे बोल सकते हो to switch on the computer, to switch on something, to switch on the fan, maybe बटन से किसी चीज को ऑन ऑफ करना जनरली. Ausschalten to switch off. Switch off. Yes. Aufdrehen, zudrehen. Aufdrehen का मतलब है किसी चीज को घुमा के खोलना, जनरली बोतल वगैरह के लिए. ओके. Aufdrehen to open and zudrehen to close. Schließen is to close. Abschließen is Close. to close. दोनों ही schließen है. Schließen. To close. Ich habe geschlossen. Ich habe die Tür geschlossen. I have closed the door. Yes. So, अरे एक ही है. एक ही है. हाँ. एक क्यों है ये नहीं पता क्यों है, एक ही है. ओके. कभी कभी अब वाला जो है नेगेटिव सेंस भी देता है. उधर तो धमाक से बंद करके मे बी, आई डोंट नो. सो अब के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कैब. आपको इसके सेंटेंस खुद बनाने हैं. मैंने तो बना दिए जो बनाने थे. अब आपको क्या करना है, घर पे इस तरह की वर्ब का ग्रुप में डालना है. स्वाहा. यस प्लीज. आपने आपने हेलो सर, यस. आपने सर अनुमाखन का भी ऑन बताया था, रिमोट से ऑन करना. और सर इसका क्या कहते हैं, और einschalten का भी स्विच ऑन बताया था सर, बटन से ऑन करना, रिमोट से ऑन करना.
डिफरेंस क्या है सर? मैं तो कह रहा हूं कि कभी तो आइनशाल्टन यूज कर लेना और कभी अनमाखन कर लेना यूज। वैसे आइनशाल्टन जनरली स्विच ऑन, बटन से ऑन करना, जिसमें चटक की आवाज आई। अनमाखन टू ऑन करना। अब मान लो कि और जो आप ऑफलाइन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस, इनका कंपैरिजन में क्या डिफरेंस रहता है? ऑफलाइन का मतलब भी टू ओपन है, वो भी टू ओपन है। ओपन हो गया, हाँ, वो भी ओपन, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ, बेटे यफनन जी दी ट्यूअर प्लीज ओपन द डोर, बेटे माखन जी दी ट्यूअर आउफ प्लीज ओपन द डोर। तो आउफ माखन यफनन का भी सेम है, लेकिन अरे यफनन थोड़ा अलग है। अरे यफनन का मतलब होगा अरे हमने दुकान खोली है, मतलब नई खोली है। टू ओपन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे दुकान मतलब उद्घाटन किया है, नया काम शुरू किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में अरे यफनन। ओके, सो कंपेटर फ्यूशन मतलब फीट, प्लूरल है। फूस का फ्यूशन, लेकिन एन क्यों लगा है? दाटिव तो नहीं है कहीं? भाई है दाटिव, Yes, इसलिए sir, N दाटिव लग रहा है। एक ही वजह से। फूस का तो फ्यूशन होता है, लेकिन एन लग गया, ये जरूर दाटिव का हिंट देता है अपन को, इसलिए एन लगा है। बाई इज दाटिव प्रीपोजिशन। ऑल्स तो कनेक्टर था ना? हाँ, कनेक्टर ही है, और ये कनेक्टर पास्ट के लिए आता है, राइट? सो आल्स ओले वीडरवेगवार, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कह रहा है कि क्लास जो था बहुत खुश था, ये ओले जब उसकी दुनिया से चला गया, क्योंकि उसको लेने लुडर्स मिल गई और वो चला गया दुनिया से, तो ये काफी खुश था, लेकिन ये वापस आ गया तो इसकी लाइफ में दुख आ गए। ओले वार वीडरवेग प्लुट्सलिश, Suddenly. Suddenly. verrückt, पागल, crazy, पागल, Mad. verrückt, पागल, Maul, Hals Maul, Hals Maul. Shut your mouth. Yes, shut your mouth, shut up, थोबड़ा बंद रख। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, ये गुस्से में किसी को कहो। कितने पेज पढ़े हैं आपने? 30 तक? कितने पेज पढ़े हैं? 32, I think. कितने? चैप्टर 6 चैप्टर किए ना अभी? 7, sir. नहीं बोला, ओके 6 तक किए आपने, ओके नो प्रॉब्लम। टोटल है कितने? 10. 10 है? तो आपने अगर Yes, 6 sir. 7 किए, तो आज आपको अगर और कुछ नहीं दूं तो कल तक करके ला सकते हो अगले? Yes, sir. Yeah. नहीं, आपकी वोकैब, कहने को तो मैं नई स्टोरी दे दूं, बट डज नॉट मेक सेंस। आपको वोकैब पूरी करनी है, कंप्लीट। इस स्टोरी को कंप्लीट करना है आज, ठीक है? समझने की कोशिश करनी है, वोकैब लर्न कर रहे हो आप। हिंड है, Hand. हैंड। Hand. अगर सिंगल हो तो आर्टिकल क्या होता है हैंड का? There. hand, दी दी हाँ हैंड, The hand. दी हिंड, handed, हिंड इन फ्राई। हैंड इज इन फ्राई का मतलब हैंड्स आर फ्री। और अगर आप बोलो कि आई एम फ्री, Ich bin frei. ich bin frei, Ich bin frei. एक होता है ich habe frei। I have free. जर्मन लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि आई हैव फ्री टाइम, तो आप बोलोगे ich habe frei। Free side. यस, थोड़ा अजीब लगेगा आपको। अगर आप किसी को आपने कहा कि ich bin frei, तो हो सकता है इसका मतलब अगला ये निकाल ले मैं कमा रहा हूं। ich bin frei, ich habe frei, Free side. ich habe frei मतलब आई हैव फ्री टाइम। Ich habe Freizeit. यस, वही सेंस है इसका। ich habe frei मतलब ich habe Freizeit। Free side. किसी को आप बोलो कि ich habe frei,
मतलब आई हैव फ्री टाइम, वो सेंस है इसका। ओके माइन फादर हार्ट फ्राई मतलब Mein My father Vater, has free mein time. Vater is free. hat sein Vater frei? क्या तुम्हारे क्या फादर तुम्हारे Ja, पापा? mein Vater क्या तुम्हारे hat फादर frei. क्या mein Vater hat frei मतलब फ्राइड साइड। क्या तुम्हारे पापा के पास टाइम कॉन्टेक्स्ट में टाइम बोल भी फ्री है? सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ग्रामर के हिसाब से ये वाला होता है। कॉन्टेक्स्ट में समझ भी जाएंगे लोग, हर बार यही नहीं समझेंगे कमा रहा है, हो सकता है वो समझ भी जाए, बट राइट जर्मन बोलनी है हमको अब फ्राई। इस्विन फ्राई का क्या बताया था सर आपने? इस्विन फ्राई का क्या बताया था सर? आई एम फ्री मतलब आई एम नॉट मैरिड, मेरा किसी से कोई चक्कर भी नहीं चल रहा, मैं एकदम फ्री हूँ, ऐसे वो मतलब आई एम नॉट ऑक्यूपाइड, वो सेंस निकल जाता है। हाँ ओके सर। मेरा कोई पार्टनर नहीं है, वो सेंस भी निकल जाता है। सर सम के लिए क्या यूज करेंगे? सम हाँ इसका सम सर तो तीन मीनिंग आ रहा है सम सर, वो समझ नहीं आ रहा है। या सम सम SOME इंग्लिश। ओके सम फ्रेंड्स लाइक इट वाज सम some friends ना सम okay फ्रेंड्स sometime ओके एक्चुअली मैं ये जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड कॉन्टेक्स्ट पे कर जाता है। कभी कभी तो einige, कभी कभी ambition, I have some time, तो ich habe ambition Zeit, लेकिन मैं बोलूं I have some friends तो ambition नहीं आएगा, यहाँ आएगा ich habe einige Freunde, तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो केवल सम नहीं, आप उसके साथ कुछ बोलो तब क्लैरिटी आएगी। सर इसका 3 मीनिंग आ रहा है, एटोबास भी आ रहा है, ओमान से पाएंगे। हाँ आए ना लाइन पे, यस तो कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आएगा धीरे धीरे। ओले इज gefährlich मतलब डेंजरस, ये लल्लू जो है ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये gefährlich डेंजरस, Dangerous. मार भी सकता है किसी को। er ist gefährlich ruft Nele मतलब वो बोलती है Nele ऐसे, ने कहा अरे वो बहुत खतरनाक आदमी है, रूफ चलो, कोई फोन थोड़ी किया, वैसे ही बोली। रूफन का मतलब बोलना बुलाना, कई मीनिंग निकलते हैं। दिलखाइडे इसका क्या मतलब है? ये तो नाम है। नेम है सर। नेम है। शटन Shadow. शैडो, अच्छा परछाई, गैलेंडर Area. रेलिंग जगह. रेलिंग 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 रेलिंग, स्वार्ट्स Black. ब्लैक शॉर्ट 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 साक्षी Sweetheart. डार्लिंग स्वीट हार्ट, साक्षी या साक्षी। अश्रिक्ट चॉक्ड, त्रिट, त्रिट मतलब लात, Hit करना. हिट करना, टांग मारना, त्रिट। ये कौन है? नील है, नेले. कोर्स कर रखा है इन्होंने। यस einen kräftigen Tritt, kräftigen दमदार, गुस्से में लात मारना। मेरे नए फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। Nele hat Ole einen kräftigen Tritt gegeben.
लात मारी उसको, चश्मा नीचे गिर गया उसका। निस्ट सेलेस्ट, नॉट बैड। मतलब किसी ने कमेंट किया अरे ठीक किया, अरे ये बढ़िया था, तो नॉट बैड मतलब बहुत ही बढ़िया। नॉट बैड का मतलब बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, वो मतलब है इसका, मजा आ गया। चैट पास्टोर डंक बार, पास्टोर ने थैंकफुल होते हुए कहा, क्योंकि ये पास्टोर के जान पे पड़ा था ये, और उसने मार के बचा लिया पास्टोर को। Ich hatte wirklich große Angst. I had really fear. डर गया वो इससे, जानवर नहीं, जानवर ये नेले से, नेले से नहीं, ओले से। Selbstverteidigung, self defense, self defense। Selbst मतलब self, Verteidigung मतलब defense, डिफेंस Verteidigung, Ministerium, Ministerium, Ministry, Verteidigung, Ministerium, सेल्फ डिफेंस मिनिस्टर okay. Kein Problem. In der Kneipe habe ich oft mit komischen Typen zu tun. अरे मस्त रहो आप, यहाँ पे पब में ऐसे लफंगे बहुत आते हैं, वो पीने के लिए आते हैं कई लोग, हो सकता है, तो ऐसे को बहुतों को मैंने निपटाया है। कह रही है ये, Da habe ich mal einen Kurs zur Selbstverteidigung gemacht। तो मैंने कोर्स भी कर रखा है सेल्फ डिफेंस का। Das ist toll। हाँ ये ठीक रहा। Danke Ihnen sehr, Nele। ने जान बचाई, इसके लिए मैं तो थैंकफुल रहूंगा। ओके, बाइडेन फिशन, was hat Ole dann gesagt? Wo ist Klaas? उसने पूछा था कि अरे ये तो बता दे क्लास कहाँ है। बोला क्लास तो खलास, उसने ऐसा कुछ बोला था। ओके, तो आपको ये कंप्लीट करके आनी है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इसकी वोकैब पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ये स्टोरी कंप्लीट करोगे? स्टोरी नंबर हेलो, यस प्लीज। ये ना एक्चुअली जो वीडियोस थे ना, वो 4 वीडियोस नहीं अपलोड हुए हैं, उसमें स्टार्टिंग के 4 वीडियोस थे वो। आपको आपके वीडियोस वापस आना शुरू हो गए ना, वो सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, चिंता मत करो। एक्चुअली ये एप्लीकेशन के लेवल पे उन्होंने एकदम चेंज कर दिया एप्लीकेशन को, तो सिस्टम बदला है उन्होंने। तो अब वो कह रहे हैं कि हम लोग वीडियो वापस सारे दे देंगे, तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये तसल्ली है, आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, हाँ टाइम ले रहे हैं वो, Thank लेकिन you. सेट कर देंगे एक बार। हेलो सर। हाँ तो वो एक्चुअली उन्होंने कर तो दी गलती, लेकिन स्टोरी नंबर बोलिए ना। अरे चीज में यस, स्टोरी नंबर स्टोरी नंबर यस। ये कंप्लीट करनी है स्टोरी। हमने 7 पहले कर लिए थे, 8, 9, 10। ओके, तो मतलब बचे हुए 3 का मतलब बाकी की कंप्लीट। अच्छा ठीक ओके है। सर Dankeschön, sir. Dankeschön, sir। डन किसको